हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। वंदे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। We say we became a republic because we elected our head of the state by 24th January 1915, Dr. Rajendra Prasad as a head of the state, as the president, right? But we adopted our constitution at 26th January 1950. Constitution means the government, the persons, the peoples of India, how they perform, how they will live in India, because each and everyone has equal rights, equal freedom of speech, equal law. The constitution is not a paper and the republic is not only the freedom. The republic means to be, you enhance, you express your thoughts, whatever come in your mind, for your freedom, for your speech, for your dedication, for your equality, for your other things. So you just keep in your mind, republic means we are free, but there is some restrictions done by the government according to the constitution. Give the power to our central government, our parliament, to make the laws, to be decrease the values, decrease the powers of the common citizens for the dignity, equality and the security of the country. So these 60 nations constitution we have revised and we have taken the different laws and other things from the other nations. If I talk about some examples
The examples are there. We take in the government procedure. So that's why you just keep your mind. We are republic. The means of republic not only to be adopted the constitution. It means to be the freedom of speech and equality, liberty and fraternity. These things we had taken from the France, right? And this is the largest constitution of the world, because India is the largest country. If I talk about the current scenario, that according to population, India is the largest country in the population. So that's why keep in your mind and to be free, and you can express your thoughts and everything. Thank you all, and once again, Happy Republic Day to all of you. आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। Happy Republic Day to all of you. Today we are gathered here to celebrate our Republic Day. Republic Day, why we celebrate Republic Day? Because that day we have some rules and regulations for our country, how to we live with some restriction, and also we have some freedom. Just like we put some rules and regulations in your schools for your better futures. For that, our leaders also made some rule or regulation for our country to make better futures. So that's when you come in anywhere, also follow all rule and regulation for your better futures. That's for our country law, or that's for our school law. So please mind it, students, that is for your better future. Thank you, and again Happy Republic Day. हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ कई मज़ाहिब, कई समुदाय, कई लोगों किस तरह से है, मगर ये मुल्क हमारा एकता अखंडता की पहचान है। आइए, क्योंकि ये यौम जमहूरिया जिसे हम और इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, बस इसलिए मुल्क की तारीफ के लिए किसी ने कहा था, क्योंकि ये हमें आजादी और ये अवसर यूं ही नहीं मिला है, बल्कि हमने कितनी कुर्बानियां देने के बाद इस मुल्क में हम आजादी महसूस कर रहे हैं। हमें बआसानी मिल गई, मगर हमारे जो पूर्वज, हमारे जो रहनुमा, हमारे जो रहबर, हमारे जो नेता, हमारे जो लीडर अपनी अपनी कुर्बानी दी, जिसके नतीजे में
ये आज हमें जो कि दस्तयाब है, हमें मौसूल है, हमें ये रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया मनाने का मौका मिलता है और मिला है। ये आज का जश्न सिर्फ किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी गिरोह के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उन लोगों के लिए है जिस इस त्योहार को, बल्कि ये कहा जाता है कि ये वो त्योहार है जो हमारे मुल्क का त्योहार है, जिसमें अपनी अपनी कुर्बानी देने के लिए इस तरह से तैयार थे। ये 4 मिसरे मैं कहूं कि ये लफ्ज इनकलाब हमने दिया, ये लफ्ज इनकलाब हमने दिया, हौसलों को शबाब हमने दिया, और इसकी शाहिद है वतन की धरती कि दुश्मनों को जवाब हमने दिया। इसकी शाहिद है वतन की धरती, दुश्मनों को जवाब हमने दिया। जब ये जवाब हमने दिया तो ये मौके हमें नसीब हुए, और इस परचम के लिए तो ये कह दिया जाए कि भारत की सरजमी की शोभा है ये तिरंगा, भारत की सरजमी की शोभा है ये तिरंगा, पैगाम अमन बन के कैलाश छू रहा है, और ये चांद ये सूरज ये हसरत से देखते हैं कि धरती पे रहने वाला आकाश छू रहा है, धरती पे रहने वाला आकाश छू रहा है। क्योंकि आज का जो मौका है, न हम बगावत में रहते हैं, ये किसने कह दिया कि हम यहाँ दिक्कत में रहते हैं, न नफरत में रहते हैं, न बगावत में रहते हैं, ये किसने कह दिया कि हम यहाँ दिक्कत में रहते हैं। हमारी ये सरजमी हमारे लिए सब कुछ है यारो, ये हमारी सरजमी मैं इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपने बातों को यही इख्तिताम देता हूँ, ताकि और लोग भी हैं जो अपनी कुछ बातों को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट, कहते हैं उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और सारे शिक्षकों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस गणतंत्रता दिवस पे अपने विचारों को आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी आजादी की हो। यूँ तो आजादी की लौट तो 1957 में ही लग चुकी थी, जो 1947 में जाकर देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन भारत के और वर्तमान उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तो रंग बसंती जुमला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ा देते आता था। जब 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत अपने घर को हालातों की देख कर कहता थी कि मैं प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता चला ही नहीं, पूरे जिस्म की कई पोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई पोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। पूरा परिवार अपना देशभक्ति जब साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में देश का सबसे सच्चा देशभक्ति वो है जो अपने काम को पूरे ईमानदारी, पूरे निष्ठा से करता है। अगर वर्ष में केवल 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक नंगे पांव जब हाथों में तिरंगा लेकर बेचता है तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि ना वो शिवालय को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। वो पेट का भूखा ऐसा, वो केवल भोजन के निवाला को जानता है, वो केवल भोजन के निवाला को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। और हर देशद्रोही को मैं बताना चाहूंगी, अगर ये तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है, अगर रहना है तो रह इस जमीन पर भाईचारे से, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अपने देश के महिला सुरक्षा के बारे में बता दूं, आज हमारा देश महिला सुरक्षा में चौथे
तो तब होगा जब हम ना हमें हिंदू चाहिए ना हमें मुसलमानों की जरूरत है, ना हमें हिंदू की जरूरत है ना मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। इंडियन। और आज मैं यहाँ सैल्यूट करना चाहूंगी सभी उस जवानों को जो हमारे दिन रात खड़े होकर सुरक्षा करते हैं, और पुलिस प्रशासन और किसानों को और हर उस व्यक्ति को जो अपनी काम को पूरे निष्ठा पूरे ईमानदारी से करते